Hello students, welcome back to your English class. This is your English educator Miss Afreen, whom you are all familiar with, and I'll get to know you all through these online lectures only. So today we're going to start a very important topic in English, which is a very necessary topic in all the classes, चाहे वो 9th है, 10th है, 11th or 12th, that is letter writing. We all know it's not only necessary in your papers, but it's a life skill, I would say, because every time we see our aunties, uncles, dadas and dadis, they tell us any time in our life कि जरा ये letter लिख के दे दो. So we should know how to write a letter because that's the only thing that they are going to tell themselves. Okay, बच्चा कुछ पढ़ रहा है. So letter writing is very important in your paper also because it compiles 6 marks. So today we are going to take these 6 marks in our bag and keep it forever. Till then हमारा जो next exam आएगा letter writing should be something जिसके बारे में हमें कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए. So as we know, letter writing में we have two types of letters. One is informal and another is formal. What's the difference between the two? I know कि आप सबको ये पता होगा, but the only difference between the two is that informal letters, they are the personal letters which we usually write to our family and friends, while as formal letters, they are directed to the department. So obviously इसमें बहुत ज़्यादा हमें ख्याल रखना पड़ता है about the words. We have to be very formal and the departments जो जिनको हम लिखते हैं, we do not call them by their names or we do not directly address to them with their name, but with the designation. So we write to the head of the departments of any department, जिस भी department को आपको letter लिखनी होगी. So this topic is not only important for the foundation classes but 11th and 12th classes. I know कि आप लोग English को बिल्कुल last पे रखते हैं and then you will watch these videos on 2x speed. So today should be the day that you don't have to look for the 2x speed wala video when it comes to your exam, because today is the day that we're going to finish up with this letter writing once and for all, because ये हम सीख रहे हैं. It's not only for the paper but हम ये अपने लिए सीख रहे हैं, because letters are very important. आप किसी भी डिपार्टमेंट में अगर काम भी करेंगे, कभी वहां पर लेटर लिखनी पड़ जाएगी तो इंसल्ट नहीं होनी चाहिए हमारी. ऑलराइट, सो एज आई टोल्ड यू, सबसे पहले हम लोग करेंगे फॉर्मल लेटर के बारे में. मैंने आपसे कहा था कि फॉर्मल लेटर्स आर समथिंग जो हम लोग डेजिग्नेटेड हेड्स को एड्रेस करते हैं. सो फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज द सेंडर्स एड्रेस. ऑलराइट, वी नो who is the sender. We are the senders. So senders address का एक जो rule है, it starts with, and everything you have to write in the extreme left of your paper. Okay, and बच्चों जहां पर भी मैं कोई भी minute detail बोलूंगी जिसपे आपको लगेगा अरे मैम ये क्या बोल रही है, for instance I'll tell you कि यहाँ पर आपको line skip करनी है. It's a very important लाइन. ओके, ये जब मैं आपको बोल रही हूँ इट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई ओनली मैं आपको ये बोल रही हूँ, विच मीन्स इट कैरीज मार्क्स. लेटर के मार्क्स बॉडी से ज्यादा उसके फॉर्मेट के होते हैं. ठीक, सो द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव इज सेंडर्स एड्रेस. हु इज द सेंडर? वी आर द सेंडर्स. बट सेंडर्स एड्रेस का भी एक रूल है. द फर्स्ट रूल फॉर द सेंडर्स एड्रेस इज इट हैज टू बी मिनिमम इन 2 लाइन्स और मैक्सिमम इन 3 लाइन्स, जैसा आप लोग को अच्छा लगे, बट मिनिमम इन 2 लाइन्स इट शुड बी. सो इसके लिए हम एक ट्रिक देंगे. we'll write house number, we'll write lane number. Okay, let's write it like this. Let me erase it first. We'll write it like this. House number, say for instance 40, lane 6, and where do we live? तब जाके हम अपने घर का एड्रेस बोलेंगे, बिकॉज वी हैव टू मेक श्योर कि हमारा सेंडर्स एड्रेस जो है वो 2 लाइंस में आना चाहिए. ऑलराइट, सो फॉर इंस्टेंस आई लिव एट खयाम, तो वील राइट खयाम एंड देन वील राइट श्रीनगर. Make sure that you don't use any short forms like Srinagar ka SGR. We don't use short forms in especially फॉर्मल लेटर्स में. इनफॉर्मल में तो भी चल जाएगा बट वहां पर भी नहीं करना चाहिए, बट यहाँ पर जो है बिल्कुल हम ऐसा नहीं करेंगे. एंड व्हेन आई टोल्ड यू कि अगर आप 3 लाइंस में लिखना चाहते हैं देन यू कैन ऐड द पिन कोड. ऑलराइट,
यहां तक हमारा काम पहले हो गया, सेंडर्स एड्रेस, वी आर डन विद दैट। आफ्टर दैट यू विल स्किप अ लाइन। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा, यू डोंट हैव टू लाफ इट ऑफ कि मैम पता नहीं क्यों बोल रही है, लाइन छोड़ने के भी मार्क्स है बेटा, बिकॉज यूजुअली व्हाट वी डू इज वी राइट अ लेटर ऑन अ प्लेन पेज, एंड लेटर का जो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल होता है, वी हैव टू मेक श्योर दैट आवर फॉर्मल लेटर इट इज कंप्लीटेड ओनली इन द सिंगल पेज, ठीक। लेकिन बिकॉज अब आपके जो एग्जामिनेशन पेपर्स होते हैं वो ज्यादातर हॉरिजॉन्टल इसमें होते हैं, तो आप 2 लाइन्स तक भी जा सकते हैं, बट मेक श्योर दैट यू स्किप द लाइन्स, वेयर एवर आई एम मेंशनिंग टू स्किप द लाइन, यू स्किप द लाइन, ऑलराइट। उसके बाद देन वी हैव डेट। डेट का भी अपना एक फॉर्मेट है, वी विल नॉट यू, जैसे कि व्हाट्स द डेट टुडे, आई थिंक इट्स 8 दिसंबर 25, हम ऐसे बिल्कुल डेट नहीं लिखेंगे, 8 दिसंबर ऐसे हम बिल्कुल भी डेट नहीं लिखेंगे। हाउ वी आर गोइंग टू राइट द डेट, इट ऑल्सो हैज अ फॉर्मेट, we'll write date like this, you don't have to write the date itself, ठीक है। हम लिखेंगे it's 8th of December 2025, alright, we're done with the date। उसके बाद हम फिर से एक लाइन स्किप करेंगे। What is there? रिसीवर्स एड्रेस, नॉट ओनली रिसीवर्स एड्रेस बट हमें रिसीवर की इंफॉर्मेशन देनी है। एज आई टोल्ड यू कि फॉर्मल लेटर में क्या होता है, वी आर एड्रेसिंग द लेटर टू अ डेजिग्नेटेड हेड। से फॉर एग्जाम्पल हम बैंक की बात करते हैं, अगर हमें बैंक को लेटर लिखना है, हु इज द डेजिग्नेटेड हेड देयर, द मैनेजर, ऑलराइट। देन we'll have to write, पहले तो मैं यहां पर थोड़ा सा ऐड करूंगी, पहले हम लिखेंगे रिसीवर्स डेजिग्नेशन, ऑलराइट। Then we'll write the name of the department where our designated head is, ठीक है। It could be an institution as well, because आप लोगों को लेटर आ सकती है स्कूल पे प्रिंसिपल को लिखनी है, कॉलेज के प्रिंसिपल को लिखनी है, that's why institution, और सम ऑर्गेनाइजेशन। लेटर किसी भी किस्म की हो सकती है, एज आई टोल्ड यू इट्स नॉट ओनली फॉर योर पेपर बट इट इज फॉर लाइफ, ठीक है। ये एक लाइफ स्किल है, क्योंकि लेटर्स यूजुअली हमें सब बोलते हैं जरा लेटर एक लिख के दे दो, दैट इज देयर कंडीशन ऑफ टेलिंग देमसेल्व्स कि अच्छा ये पढ़ा लिखा है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद लास्ट का वी हैव द रिसीवर्स एड्रेस, विच एड्रेस, उसके घर का एड्रेस हमें नहीं लिखना है, एड्रेस हमें लिखना है कि ये डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन जो भी है वो कहां पर लोकेटेड है, ठीक। सो एज आई टोल्ड यू कि हम बैंक की एग्जांपल ले रहे हैं। सो द मैनेजर, व्हाट्स द नेम ऑफ द बैंक, यू कैन से J&K बैंक, और यू कुड से SBI, HDFC, whosoever, ठीक। उसके बाद वेयर इज द ब्रांच, फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर बोलेंगे ब्रांच है रैनावारी में, रैनावारी एंड श्रीनगर अगेन। नाउ वी आर डन विद आवर रिसीवर्स पार्ट ऑल्सो, ठीक है बच्चों, ये आप लोग को ध्यान में रखना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल डू इज, उसके बाद हमारा आता है सैल्यूटेशन, ठीक है। सी बच्चों, सैल्यूटेशन में हम क्या करते हैं, सैल्यूटेशन में हम लिखते हैं एक्चुअली पहले सब्जेक्ट, यूजुअली जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है लेटर का, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, देन वी हैव सैल्यूटेशन। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगी कि ये लेटर का फॉर्मेट जो है ये बहुत पहले ही थोड़ा सा अपग्रेड हो चुका है, बट सैडली अभी ये इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं हो रहा है, दैट्स व्हाई वी विल स्टिक टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट। बट आपके जीके के लिए हम ये ध्यान में रखेंगे कि सैल्यूटेशन अब सब्जेक्ट से पहले आता है और उसके बाद सब्जेक्ट आता है। इट इज अ लिटिल एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट यू शुड नो, इट गिव्स यू एन एज ओवर अदर स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता है ये बात, तो बट वी विल स्टिक टू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट, क्योंकि अभी हमारे जो बोर्ड के टीचर्स एंड ऑल ऑफ दैट वो अभी ये अप्लाई नहीं कर रहे, सो वी विल ऑल्सो स्टिक टू दैट, बिकॉज आपके पेपर्स जो चेक कर रहे हैं वो बोर्ड के ही टीचर्स है, ऑलराइट। सो पहले अब हमें लिखना है सब्जेक्ट। What do we mean by subject? Subject is a one-liner that tells us about the crux of the message.
क्रक्स ऑफ द लेटर, आई एम सॉरी। तो क्रक्स ऑफ द लेटर क्यों? बिकॉज ये जो हमारा डेजिग्नेटेड हेड है, इसको दिन में 10,000 लेटर्स आ सकते हैं। ही और शी माइट नॉट हैव द टाइम टू रीड द होल लेटर, तो वो ज्यादा से ज्यादा क्या पढ़ते हैं, वो वहां पर आपका सब्जेक्ट पढ़ते हैं। सो दिस वन लाइनर हैज टू बी द क्रक्स ऑफ आर होल लेटर। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगी कि मेरा एटीएम ब्लॉक करना है क्योंकि वो खो गया है, सो वील से एप्लीकेशन या फिर विल से रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टिंग लेट्स से एप्लीकेशन ही लिखते हैं, एप्लीकेशन फॉर ब्लॉकिंग ऑफ एटीएम। ठीक है, तो इससे उनको समझ में आ जाएगा कि हमें इस एटीएम का क्या करना है, ब्लॉक करना है। बाकी की जो दास्तान है वो बॉडी में ऑफ कोर्स पढ़ सकते हैं, लेकिन दिस इज द क्रक्स, हम इसीलिए लिख रहे हैं लेटर, इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक, उसके बाद व्हाट डू वी हैव, सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वी हैव टू बी वेरी फॉर्मल। ऐसा नहीं है कि सैल्यूटेशन इज समथिंग दैट वी राइट, जैसे रिस्पेक्टेड सर, एस्टीम्ड सर, या फिर हम लिख सकते हैं डियर सर भी आप लिख सकते हैं, बट ऑन सेफर साइड आप चाहे तो यू कैन स्टिक टू रिस्पेक्टेड सर और मैडम। अगर आपको पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऐसे हम यहां से करते हैं रिस्पेक्टेड सर और मैम। ठीक है, आप चाहे तो इधर कॉमा डाल सकते हैं, अभी के टाइम में सैल्यूटेशन के बाद कॉमा जो है वी कैन स्किप इट आल्सो। ठीक, उसके बाद जैसे ही सैल्यूटेशन हो गया विच मीन्स द फॉर्मल एड्रेसिंग, तो फिर उसके बाद हम आ जाते हैं अपने बॉडी ऑफ द लेटर पे। ठीक, बॉडी ऑफ द लेटर इट हैज टू बी डन इन 3 पार्ट्स, पैरा 1 इंट्रोडक्शन, पैरा 2 द डिटेल्स एंड पैरा 3 द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। आई विल टेल यू हाउ वी डू इट। ठीक है, जो पैरा 1 है वो हम स्टार्ट करेंगे विद द इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स, एंड जिसके लिए पर्पस के लिए हमने लेटर लिखा है, तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट इट विद ड्यू रेवरेंस। For example, with due reverence, I would like to bring these lines in your reference that I am an account holder in your prestigious bank bearing account number। वो सारा हमने 2 या 2.5 लाइनों में दे दिया। रिमेंबर 2 से 2.5 लाइनों में आपको पैरा 1 देना है। ऐसा नहीं डर जाना है कि हमने पैरा 3 लिखने हैं, पता नहीं कितनी दास्तान लिखनी है। नो, यू आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है इट कुड बी इन 2.5 लाइन्स, पैरा सेकेंड, आई एम सॉरी द फर्स्ट वन वाज पैरा 1, and para second जो है it could be in 6 to 7 lines and para third again 2.5 lines। ठीक, अब जो para 2 की हम बात कर रहे हैं that is जिसमें आप अपना मेन कंटेंट डालेंगे, आप उनको बताएंगे why do you want to block your ATM। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूंगी I was traveling from Lal Chowk to Chanpora and I have lost my wallet in the bus and that in that wallet I had all the cards, चाहे आपका ATM कार्ड था and all of that, so that's the reason I don't want it to be misused by someone else or else there will be a problem for my account, या फिर मेरे पैसे चले जाएंगे। वो सारी डिटेल्स जो है हम पैरा 2 में देंगे। ठीक, एंड पैरा 3 में हम कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर देते हैं। विल टेल देम कि प्लीज टेक दिस मैटर इन कंसिडरेशन एंड एक्ट ऑन इट as soon as possible, thanking you in anticipation। that again comprises of our 2.5 lines। तो वो हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। लेकिन जब आप पैरा 1, पैरा 2 और पैरा 3 को चेंज कर रहे हैं ना बच्चों, यूजुअली हम लोग पैरा को चेंज क्या करते हैं, हम थोड़ा सा उधर लिखते हैं लाइन में, लेकिन आप लोग के लिए ज्यादा बेटर रहेगा अगर आप पैरा चेंज करने के टाइम लाइन ही छोड़ दे। ठीक, लेकिन दैट इज होली एंड सोली योर चॉइस, आप वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी, लेकिन इस तरीके से जो आपकी लेटर थोड़ी सी ब्यूटीफुल लगती है। ठीक, एंड देन एट लास्ट
what do we have? We have the subscription. जैसे आप YouTube पे बोलते हैं, लास्ट पे क्या बोलते हैं? Like, share and subscribe. You do like, share and subscribe this channel also. तो सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है अब आप अपने बारे में एक तो थोड़ी सी ग्रीटिंग देंगे. yours sincerely would be the word जो हम बोलेंगे, क्योंकि sincerely is something which means कि जो भी हमने ऊपर ये कहा है ये सारा सच है, ये झूठ नहीं है. So obediently you can use it with your schools, faithfully you can use it with the department that you're working in, लेकिन sincerely goes almost with all the letters. ठीक है, तो ऐसे yours sincerely, and then we'll write our name, our mobile phone number and signatory. तो mobile number usually इन्हीं cases में ज़रूरत पड़ता है, but if you're writing to your school or college, वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एक बहुत ही important चीज़ है बच्चों that I have seen, मैंने इतने साल पढ़ाया है, लेकिन एक चीज़ जो है पता नहीं बच्चों को याद क्यों नहीं रहती है. यहाँ पर apostrophe डालना is a grammatical blunder, क्योंकि आप सबको पता होगी why do we use apostrophe, हम यूज क्यों करते हैं? It tells us about the possession, यानी कि कोई चीज जो हमारी बिलोंगिंग है. तो जब मैं लेटर लिख रही हूँ मैनेजर को या बैंक को, हम तो बैंक के नहीं है ना. ये एक फनी सी बात है, शायद इससे आपको याद रह जाए कि हमें अपने आप को किसी के हवाले नहीं करना है. सो यू डू नॉट यूज दिस apostrophe प्लीज. ठीक, तो ये आपकी लेटर हो जाती है यहाँ पर फॉर्मल लेटर कंप्लीट. एक क्विक सा रिवीजन लेते हैं. सेंडर्स एड्रेस मिनिमम इन 2 or 3 लाइंस. डेट का फॉर्मेट दिस, एंड देन वी गिव द इंफॉर्मेशन ऑफ रिसीवर. एंड रिसीवर के इंफॉर्मेशन में हम क्या क्या बोलेंगे? हम उनका डेजिग्नेशन बोलेंगे, नेम बोलेंगे उस डिपार्टमेंट का जहां पर हमने ये भेजना है, एंड वहां का एड्रेस जहां पर वो इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड है. एंड देन वी हैव सब्जेक्ट. सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? A one liner that tells them about the crux of our letter. ठीक, and then we have salutation, as I told you, addressing to the addressee with utmost regard, so we call them as dear sir, respected sir. That's how it goes. And then body of the letter, para 1 में formal greetings, para 2 में main content, para 3 में complimentary closure, and at last we have subscription. and जहां जहां पर मैंने आपको बोला है कि आपको लाइन स्किप करनी है, वहां पर लाइन स्किप करनी है. ठीक है, सो अब ये तो हमारी फॉर्मल लेटर का मैंने आपको एक सैंपल दे दिया बच्चों, बट आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग मोर. ठीक, ज्यादातर आपको 8 डिपार्टमेंट्स के जो है लेटर्स आ सकते हैं. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू टेक आउट योर पेन एंड नोटबुक. अगर अभी तक आपने नहीं निकाली है तो हम उन 8 डिपार्टमेंट्स का जो रिसीवर वाला इंफॉर्मेशन है वो आपको बताएंगे. जैसे कि बैंक का मैंने आपको बोला द मैनेजर, चाहे वो जेएन के बैंक है, एंड फिर उसका एड्रेस जो भी हमने दिया अभी, या आप अपनी ब्रांच का दे सकते हैं. ठीक है, ओके. द सेकेंड डिपार्टमेंट जो आपको आ सकती है लेटर लिखने के लिए, से फॉर इंस्टेंस पुलिस स्टेशन. अगर आपकी लेटर जो है वो पुलिस स्टेशन को एड्रेस की हुई है तो हम किसके ऊपर लिखेंगे? हु इज द डेजिग्नेटेड हेड? इट इज द SHO. पुलिस डिपार्टमेंट्स के यूजुअली नाम नहीं होते हैं, दैट्स व्हाई वी राइट पुलिस स्टेशन इटसेल्फ, पुलिस स्टेशन, एंड द एड्रेस ऑफ द पुलिस स्टेशन जहां पर आपको लेटर लिखना है. फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा खानियार. ठीक है, खानियार श्रीनगर. ठीक, ये हो गए हमारे 2 डिपार्टमेंट्स. बिकॉज व्हाट आई हैव नोटिस्ड दैट यूजुअली आवर स्टूडेंट्स व्हाई डू दे फेल टू राइट लेटर्स? बिकॉज उनको डेजिग्नेटेड हेड्स और डिपार्टमेंट्स के बारे में पता नहीं होती है. क्योंकि अगर आपको ये चीज बच्चों याद रह जाएगी, बॉडी हार्डली मैटर्स, क्योंकि उसके 1.5 और 2 मार्क्स होते हैं, बाकी के जो 4 मार्क्स होते हैं वो इसी सब के होते हैं. दैट्स व्हाई मेक श्योर कि आप ये 8 डिपार्टमेंट्स के डेजिग्नेटेड हेड्स और इनके बारे में लिखे. ठीक, सो द थर्ड डिपार्टमेंट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, SMC जिसको हम यूजुअली बोलते हैं, वहां पर हम किसको लिखेंगे? विल राइट टू द कमिश्नर. ठीक है, विल राइट टू द कमिश्नर.
एंड SMC डिपार्टमेंट एज यूजुअली उनका भी कोई ऐसा नाम नहीं है, आप पूरा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लिख सकते हैं। एंड देन उसका एड्रेस तो लाल चौक ही है, वी राइट लाल चौक देन श्रीनगर। ठीक है, हो गए आपके 3 डिपार्टमेंट्स। देन वी हैव यूजुअली जो आती है दैट इज द बुक सेलर। बुक सेलर्स में हम किसका लिखेंगे? इट विल बी टू द एडिटर और यू कैन राइट टू द पब्लिशर। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि आपको किसी पब्लिकेशन को लिखना है। अगर बुक सेलर आए तो आई थिंक एडिटर ऑन सेफर साइड हम याद रखेंगे। ठीक, वहां पर बुक सेलर्स का नाम, जैसे कि हमारे कश्मीर में है MBD बुक सेलर्स, ठीक है, KBD बुक सेलर्स, तो उनका नाम एंड अगेन उनका एड्रेस। जैसे कि मैंने इनका नाम लिखा है तो लाल चौक में है ये, अगेन श्रीनगर। ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आई हैव एनकाउंटर्ड विद, जिनको प्रॉब्लम होता है लेटर राइटिंग में, वो यही आता है कि दे डोंट नो अबाउट द डेजिग्नेटेड हेड्स और द डिपार्टमेंट्स। ठीक, ये आ गए हमारे 4 डिपार्टमेंट्स। एंड देन वी हैव न्यूज़पेपर। आपको किसी न्यूज़पेपर को अगर लिखना है, अगर आपको आता है कि किसी न्यूज़पेपर को आप लेटर लिखिए, उनको अपने किसी प्रॉब्लम के बारे में बताना है कि आप अपने आर्टिकल के थ्रू करो, वहां पर भी हम लिखते हैं एडिटर को। ठीक है, एंड वहां पर हम किसका नाम लिखेंगे? न्यूज़पेपर का नाम लिखेंगे, जैसे कि ग्रेटर कश्मीर। ठीक है, ये हमने लिख दिया ग्रेटर कश्मीर। एंड वी नो, सबको पता है कि प्रेस लेन में ही है ये सारे, प्रेस लेन श्रीनगर और लाल चौक यू कैन राइट। ठीक, हो गया आपका न्यूज़पेपर का भी मसला सॉल्व। देन वी हैव कॉलेजेस, स्कूल्स, बस यही तो आते हैं, वहां आपको पता ही है, इट्स आइदर द प्रिंसिपल और द हेडमास्टर। तो हम वो तो आप लोग बचपन से ही करते आ रहे हैं। प्रिंसिपल, नेम ऑफ द स्कूल, से फॉर इंस्टेंस मैंने CMP स्कूल में पढ़ा है, लेट मी राइट इट डाउन, CMP हाई स्कूल, ओके, एंड इट वाज इन खानियार, तो हम उधर का ही नाम लिखेंगे। आई थिंक माई इंग्लिश टीचर इज गोइंग टू बी वेरी प्राउड ऑफ मी टुडे, क्योंकि उन्हीं की वजह से आई एंडेड अप बीइंग एन इंग्लिश टीचर। तो ये आप लोगों को पता है। ठीक, एंड आफ्टर दैट वी हैव वन मोर डिपार्टमेंट दैट इज, अगर आपको कभी हॉस्पिटल का भी हो सकता है, हॉस्पिटल में आप यूजुअली HOD को लिखते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। हॉस्पिटल का नाम फॉर इंस्टेंस स्किम्स सोवरा हम लिखेंगे। ठीक है, देन विल राइट श्रीनगर। ये आ गया आपका हॉस्पिटल का भी। आई डोंट थिंक और कोई भी हमें स्किप होता है। ओ यस, वन मोर इज देयर, इट इज द पोस्ट ऑफिस। कभी कभी आपको लेटर्स का इशू होता है वो, तो वहां पर हम लिखते हैं द पोस्ट मास्टर को। प्लीज फॉर गॉड सेक पोस्टमैन को नहीं लिख दीजिएगा, बिकॉज whenever I have told my students to write to the postmaster, they ended up writing postman. I don't know why, आप लोग याद क्यों नहीं रखते? It is the postmaster that we write to. Postman जो है, he is there to deliver the letters, not someone who is a designated head of the post office. ठीक है, इसी तरीके से post offices का भी कोई नाम नहीं होता है, that is why हम सीधे लिखेंगे post office. पोस्ट ऑफिसेज आर एक्चुअली रिकॉग्नाइज्ड बाय देयर लोकेशन, दैट्स उनके नाम नहीं है। हमारा पोस्ट ऑफिस रैनावारी का ही आता है, तो आई विल अगेन राइट रैनावारी श्रीनगर। सो अगर आप लोगों ने ध्यान से ये सारा वीडियो देखा है और ये 8 डिपार्टमेंट्स आप अपने नोटबुक में ऑलरेडी कॉपी कर चुके हैं, देन देयर विल बी नो प्रॉब्लम। दीज 6 मार्क्स आर लाइक दिस इन आवर हैंड, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं फॉर एवर, आई वुड से। ठीक है, सो व्हाट विल हेल्प यू टू रिमेम्बर इट, आप प्लीज इन 8 डिपार्टमेंट्स पे कोई ना कोई लेटर लिखते रहा करें। मैंने अगेन आपको कहा, इट्स नॉट ओनली फॉर द पेपर, लेटर राइटिंग इज मोर ऑफ अ लाइफ स्किल।
क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग जो है वो हमें उसी से पहचानते हैं कि आइदर वी आर एजुकेटेड और नॉट। उनको बस लेटर जिसको लिखनी आएगी ये तो पढ़ा लिखा है। पिछले ज़माने में भी जब ऐसा होता था तो लेटर कोई लिखता था वो उसके भी पैसे लेता था। सो लेटर इज नॉट समथिंग दैट इज कन्फाइंड टू योर स्टडीज ओनली। लेटर आपको हमेशा हमेशा ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। एंड देन दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर फॉर्मल लेटर वाला जो हमने किया था। नाउ आई क्विकली टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर बिल्कुल ऐसा ही लेटर है, बट देयर इज वन थिंग, आपको रिसीवर का जितना भी इंफॉर्मेशन है उसको स्किप कर देना। दैट इज नल एंड वॉइड व्हेन इट कम्स टू इनफॉर्मल लेटर। अगेन पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस, जो कि मैंने आपको कहा 2 लाइंस में हम कैसे लिखेंगे। हम लेन नंबर मेंशन करेंगे, हम हाउस नंबर मेंशन करेंगे, देन वी विल राइट आवर एड्रेस, जो कि हमने पीछे किया, ठीक। 2 लाइंस में या 3 लाइंस में, जैसे कि मैंने आपको बोला, बस सिर्फ शॉर्ट फॉर्म आप यूज नहीं करेंगे। देन डेट, अगेन एक लाइन छोड़ के हम डेट डालेंगे, जैसे मैंने कहा था आपको, इट्स लाइक दिस, 8th of December 2025, ठीक। इसी तरीके से सैल्यूटेशन, इधर सैल्यूटेशन में आप नाम यूज कर सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर राइटिंग टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। यू कैन राइट देयर ABC, whosoever you want to mention, ये आपका आ गया salutation, and then you go with the flow जब आपका पैराग्राफ्स में लिखना है आपको बॉडी। देखो अब इधर क्या होगा, इधर इनफॉर्मल ग्रीटिंग के बजाय फॉर्मल ग्रीटिंग्स होंगी। मेन कंटेंट जो है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, बिकॉज informal letter could go as long as 6 pages also, because we are writing to our family and friends। अभी तो ये ट्रेंड नहीं है, बट बैक देन उस टाइम में जब लोग बाहर होते थे तो 6-6, 7-7 पेजेस के लेटर्स वो अपने घर भेजते थे या उनके घर वाले उनको भेजते थे। सो यू कैन गो अराउंड 8 to 10 लाइन्स, बट मेक श्योर कि टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली की व्हेन इट कम्स टू योर पेपर, ठीक है। तो आप इधर भी 8 लाइन से ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक। एंड देन वी हैव पैराग्राफ 3 में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर। इफ आई से हम पहला स्टार्ट कैसे करते हैं, लाइक आई एम फाइन एंड आई होप दैट यू आर ऑल्सो डूइंग फाइन, आई एम वेरी सैड दैट यू डिडंट अटेंड माई बर्थडे पार्टी, हो गया आपका ये पहला फॉर्मल ग्रीटिंग, ठीक। उसके बाद मेन कंटेंट में से फॉर इंस्टेंस यू विल हैव टू कॉल योर फ्रेंड फॉर द वेडिंग ऑफ योर ब्रदर, तो हम लिखेंगे now then you have not attended my birthday party, that's something else, you have to come to the wedding of my brother who is no less than a brother to you also. I have invited all the other friends from school, it will be a kind of reunion also। like जितनी भी आपको दास्तान आपके उस पैराग्राफ में लिखनी है, सेकेंड पैराग्राफ में you can go with that। एंड थर्ड पैराग्राफ में कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर हम यूजुअली क्या बोलते हैं, पे माई रिगार्ड्स एंड ब्लेसिंग्स टू योर पेरेंट्स एंड लव टू चिंटू एंड मिंटू एज वी ऑल डू, तो वो हम लिखेंगे लास्ट के कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर में। एंड देन दी सब्सक्रिप्शन विल राइट योर्स लविंगली एंड देन ओनली योर नेम एंड सिग्नेटरी, ठीक। ये बस दिस इज द फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर। इसमें तो कोई एज सच डिपार्टमेंट एंड ऑल इसमें कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंज दैट यू विल सी इज इन द बॉडी, क्योंकि वहीं से आपको दिया होगा कि लेटर किस पे लिखनी है। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ आवर वेरी फर्स्ट राइटिंग स्किल क्लास, दैट इज letter writing. We'll see you in another class with one more writing skill, so that we gauge almost 30 to 35 marks in the very first week of our session, so that वो 20 to 30 marks हमारे पास already है। And you all keep up with the Future X learning. Thank you. Have a good day.